Hi Sachin, welcome on Europedia. Thank you. Yes, sir. Thank you. Okay, so Sachin, you recently got selected in University of Palermo, that is in Italy, and you Yes, got sir. selected in the master's program there. So congratulations for that. Thank you so much, sir. So, Italy is one of the destinations for Indian students, those who are aspiring to get quality and education, but at the less cost, because the fee structure charged in Italy, universities in Italy is less. At the same time, there are certain reasons, such in you are electronic engineer, and there are certain reasons why you are choosing this university. Maybe you want to get into some jobs there, which actually are very close to that particular area where you are going. And Sachin, you have already done your masters, but again, you are exploring another option. So today, my discussion is related to that only. So, how do you see this as a destination? And this interaction between me and you will be very, very helpful for so many other students who aspire to study in these kind of universities. So, I start with your background, Sachin. Please tell my viewers about your background, from which part of India you are, what is your qualification, and how was your journey till today? My name is Sachin Singh. I am from Agra, Uttar Pradesh, Hmm. and I have done my MTech from Aligarh Muslim University. In that, I have uh, in the thesis I have designed a circuit called design of continuous time linear equalizer with a Hmm. variable gain amplifier, and Hmm. I have also published that in a conference. And I got around 75% in my MTech. And in my BTech, I have done from Raja Balwant Singh Agra campus that is affiliated to AKTU Lucknow. So in that, I've got around 65.8%. And I've done a thesis called Greenhouse Monitoring using IoT devices. The- Hmm. Okay, so Sachin, after your masters, you thought of going another masters to Italy. So, can you must have done the analysis कि इटली में मेरे को मास्टर्स करने का जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी बिकॉज you will invest your time and maybe money only if you get good opportunities and return on your investment. तो मेरे व्यूअर्स yes. को ये बताओ कि इटली की जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहां से मास्टर्स आप किस स्पेशलाइजेशन में करेंगे और कितना ड्यूरेशन है मास्टर्स का और वहां से कैसी अपॉर्चुनिटीज फिर बाद में मिलती हैं. Okay, so there are four specialization in University of Palermo for electronics. The first one is modern electronics. The second Mhm. one is telecommunication. The third one is robotics and mechatronics. Hmm. There is a fourth one also in Okay. bioelectronics. Yes. Okay. So I've Hmm. applied for bioelectronics and I got offer letter for that. Hmm. Uh, Hmm. Okay. I've applied because that is most relevant to my core curriculum until now. Whatever I have done. Hmm. So Hmm. there is in that Sicily region of Italy, there that university is located. There is a Hmm. company also, a company headquarter called as ST Microelectronics. Hmm. So Hmm. it's the Hmm. main अच्छा. headquarter that is in Sicily region. Okay. Also, my Hmm. reason for choosing Palermo as my Hmm. study. ओके सो ये जो एस टी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है दिस इज वन ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यू राइट Yes, सचिन. yes, sir. सो आपने जो बायो इलेक्ट्रॉनिक्स चूज किया आपने बोला मैं बायो इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप व्हाट इज दैट बायो इलेक्ट्रॉनिक्स इफ आई हर्ड दैट करेक्टली. Sorry, sir. मैंने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स बोला. ओके सॉरी मॉडर्न Yeah, इलेक्ट्रॉनिक्स तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या है वो. ठीक मेनी है. स्टूडेंट्स जो बीटेक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में दे मे नॉट बी अवेयर. मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स आज के टाइम पे सबसे हॉट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स में VLSI है. So हम्म. modern electronics is the most relevant to VLSI. You will learn analog circuit, digital circuits, and embedded system about FPGAs. So हम्म. with that, you can go in a hardware role as an electronics engineer. हम्म. So, and हम्म. हम्म. और इसमें जॉब जो जैसे एचपी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपने बताया कंपनीज हैं ऐसी और कंपनीज हैं तो क्या वहां पे इनसे रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. बिल्कुल सर. ओके. सेम आप एनालॉग डिजाइनर की भी वो वैकेंसी होती है उसमें डिजिटल डिजाइनर की भी होती है और वही वो जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जो कोर्स है वो पूरा रेलेवेंट उसी से है. ओके. अच्छा आपने अभी जब आपकी सिलेक्शन हुई सचिन तो आई एम वेरी श्योर आपने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया होगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी और उन्होंने आपको बताया भी होगा कि किस तरीके का होता है स्टडीज वगैरह. तो व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड बिकॉज यू आर स्टिल नॉट ज्वाइन दैट यूनिवर्सिटी. तो आपने इन्फॉर्मेशन क्या गैदर किया है अभी तक. सर अभी डायरेक्टली तो मैंने किसी से बात नहीं की है वैसे. हाँ पर जी.
मुझे आइडिया है कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, मतलब मैंने अपने लिए देखा है। तो काफी अच्छा करिकुलम भी बहुत सुटेबल है आगे जॉब्स के लिए, जॉब ओरिएंटेड ही है। हम्म तो अच्छा, अब थोड़ा टाइमलाइन के बारे में बताओ सचिन। व्हाट वाज द टाइमलाइन लाइक व्हेन द एप्लीकेशंस केम? आपने अप्लाई कब किया और फाइनल सिलेक्शंस का रिजल्ट कब आया और आप ज्वाइन कब करेंगे? वो टाइमलाइन थोड़ी सी बता दीजिए। ठीक है सर। सर मैंने मार्च में अप्लाई किया था, अराउंड 5 of March. ओके। So after that, the after like in May, my application forwarded to the course coordinator. So then only the course coordinator can select a candidate for an interview. So ओके। then in May, application is forwarded to the course coordinator. Then after that, yesterday, that is around 7th of July, I got the offer. I got the interview call. So ओके। I've joined for around 7:30 p.m. for the interview. Like हम्म they have asked my background, why I want to join Palermo. They've हम्म asked like what have you done till now. I've हम्म explained everything about myself. That is truly that I've done some thesis work called CTLE circuit, and I've also presented in the work in conference. So they are much impressed by my profile. So हम्म after that, after like half hour, I have received the confirmation mail that you can proceed for the application. And so we have to do pre-enrollment till 30th of August. So after that, and the scholarship deadline is around 22 of July. So I am proceeding for scholarship as of now. So after proceeding for scholarship and visa process, and we have to go there till 1st of October. ओके। ओके, सो सचिन, इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी है आपको? व्हाट दे आस्क फॉर? इसमें सर बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, और हम्म आपका इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी के लिए कोई सर्टिफिकेट। मैंने एमओआई यूज किया था। हम्म अभी मैंने आईएलटीएस दिया नहीं है इसलिए, पर मैं देने का प्लान कर रहा हूँ वीजा के लिए, क्योंकि वीजा में हम्म लेना है। हम्म और 12th की मार्कशीट, हम्म फिर जो भी है, और सर सीवी। ओके। सो इसका मतलब कि आपका वीजा उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी, आइलेट्स की, राइट? It is not necessary, I think. It is ओके। not necessary. We can ओके। proceed with FI also, but for just हम्म a safe, we can. हम्म I'm giving it. ओके। सो ऐसा तो नहीं है कि वहां पे सारा एजुकेशन तो इंग्लिश में होगा, सचिन? जी सर। आई डोंट थिंक यू नीड टू नो इटालियन फॉर दैट। No, sir. For education purpose, I don't need to know Italian. But if I want to do a part-time job, I should ओके। learn Italian also. ओके। ओके। अच्छा, अब आते हैं सचिन फीस स्ट्रक्चर की तरफ। सो पहले तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताओ कि फीस कॉलेज का कितना लगता है और रहने खाने का कितना लगेगा, एंड फिर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? सर फीस तो अराउंड 200 यूरो है, आई थिंक। अच्छा, हाँ सर। दैट इज और पर व्हाट, पर मंथ और पर सेमेस्टर? आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दैट एक्चुअली सर। ओके। सॉरी। ओके। ओके। Okay, yeah, I'm applying for the scholarship. That fee will be हम्म waived off. अच्छा, फी आप अप्लाई करेंगे तो वेव ऑफ हो जाएगा? वेव ऑफ हो ओके। जाएगा, तो जो जो होगा वो लिविंग कॉस्ट ही होगा सर। लिविंग हम्म कॉस्ट। ओके। तो लिविंग कॉस्ट कितना पड़ जाता है वैसे? सर Sicily is like it's affordable for living. There the living is around 900 euros per month. ओके। It is the most affordable region of Italy. अच्छा। अच्छा, फिर मान लो स्कॉलरशिप अगर नहीं लगता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं वहां पे? आप कर सकते हैं जॉब? जी बिल्कुल सर, जॉब भी कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज कैसे होती हैं? जैसे मैंने कई बार सुना है कि स्टूडेंट्स जब जाते हैं बिना स्कॉलरशिप के और वहां प्रोफेसर का प्रोजेक्ट है तो उसमें टीए आरए वगैरह मिल जाता है। क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं? हाँ सर, एज ए टीए भी आप किसी प्रोफेसर के अंडर में काम कर सकते हैं। एज ए लाइब्रेरी में भी आप काम कर सकते हैं, लाइब्रेरी एज ए लाइब्रेरी हैंडल करने के लिए। ओके। तो ये सब हम अकेडमिकली पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, और उसमें इटालियन की भी नीड नहीं होती है, मोस्टली इंग्लिश में ही होता है। हम्म
ओके, तो मतलब ये सारी आपका प्रोजेक्ट, तो इवेंचुअली आपके क्या लगता है कि कितने में खर्चे में आपका मास्टर्स पूरा हो जाता है? Sir, if I calculate according to the living cost, it will be like it can be around 15 lakh. ओके, 15 लाख के आसपास हो जाएगा। जी सर। और जो सेकंड ईयर होता है वो इंटर्नशिप होती है, उसमें यू स्टार्ट अर्निंग और व्हाट? Sir, if I get an internship, I will start earning also. ओके। तो सचिन, मतलब बहुत सा कैंडिडेट ऐसा है इंडिया से जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है, उसको क्या रिस्ट्रिक्ट करता है चीज के फी स्ट्रक्चर, एक चीज है जो उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। तो क्या ऐसे कैंडिडेट जिनके फाइनेंस बहुत ज्यादा बजट नहीं है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा एजुकेशन इटली में या ऐसी जगह पे? सर बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं, अगर अगर वो फाइनेंशियली अच्छे नहीं है तो इटली हम्म। गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल हम्म। नीड स्कॉलरशिप। तो ओके। अगर आपका इनकम अराउंड 24 लाख से कम है तो अच्छा। आप उस उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके हम्म। लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आप जब अप्लाई करते हो तो अकॉर्डिंग टू द मोस्ट नीडेड पर्सन एक रैंकिंग लिस्ट पब्लिश होती है। तो आप हम्म। अगर उसमें आपका मतलब अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हो तो उसमें आपका नाम आ ही जाता है और अच्छा। स्कॉलरशिप आउट हो जाती है, अगर हम्म। आपने तो डॉक्यूमेंट अच्छे से किए हैं तो। तो ये सारा जो है ये आपके पेरेंट की इनकम है या क्या है 24 लैक्स? ये एनुअल इनकम आपकी हाउस होल्ड इनकम है सर। अच्छा। हाउस होल्ड इनकम है पूरे हाउस की, आपके भाई आपके सब लोग। तो इंडिया इंडिया में तो देखो ऐसे बहुत से परिवार है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा होंगे जो इस इनकम से नीचे ही आते हैं, उतनी इनकम नहीं होती, उससे कम ही होता है। जी तो सर। मतलब अगर ऐसा आप है तो आप इटली में वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट? जी सर बिल्कुल कर सकते चलिए, बहुत अच्छा है। अच्छा सचिन, और कोई इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ और आपको लगता है कि स्टूडेंट से शेयर करनी चाहिए हमें और उनको बतानी चाहिए? सर बहुत से लोग सोचते हैं शायद कि रैंकिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, पर हम्म। मुझे नहीं लगता कि मतलब आप अगर पढ़ना चाहते हो अच्छे से तो हम्म। आप 800 500 आप अगर अच्छे से अंदर से आपके है कि मुझे पढ़ना है, तो मुझे हम्म। लगता है आप अगर आपका नहीं हो रहा है अच्छी रैंकिंग में तो आप थोड़ा नीचे भी जाके अच्छे से वहां से पढ़ाई करके उसके बाद आप हम्म। अच्छे और जगह अच्छी जगह जा सकते और हैं। ये अच्छा मेरा पॉइंट आपने पॉइंट ऑफ ये, व्यू है। हाँ, आपने एक अच्छा पॉइंट ये भी बताया शुरू में कि जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां देखो, अगर कोई ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जैसे एसटी इलेक्ट्रॉनिक्स आपने बात किया कि उस इसलिए रीजन के अंदर ही है, तो देखो जी पढ़ाई का पर्पज होता है अच्छी जॉब में जाना। अब अगर मान लो आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, उसका रैंक यूनिवर्सिटी का क्यूएस रैंक या जो भी रैंक हम लेते हैं, अगर उसमें नहीं भी है तब भी, लेकिन अगर जॉब बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि वह इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इट सर्व्स अवर पर्पज। तो ये थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए और जी ऐसी जगह से एजुकेशन लेनी चाहिए जिसके बाद आपको जॉब अच्छी लग जाए। सर, रीजन में आपके जॉब्स अवेलेबल हो वो ज्यादा बेहतर है और हाँ, कंपनीज हो। जी वो ज्यादा अच्छा है। चलिए सचिन, अभी जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी कल ही सिलेक्शन हुई है तो मैंने आपको इमीडिएटली इंटरेक्शन के लिए पकड़ा। तो अब जब आप जाएंगे वहां, आपकी ज्वाइनिंग कब है वहां पे? हाँ सर, 1 अक्टूबर तक हम जा सकते हैं। फर्स्ट ओके। ऑफ अक्टूबर के उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, उससे पहले ही जाना चाहिए। ओके। सो जैसे अब आप वहां पे जाएंगे तो जब आप वहां पे उसका पार्ट बनेंगे तो अगेन आई इंटरेक्ट विद यू मे बी आफ्टर 1 ईयर, सचिन, सो दैट आप और ज्यादा इन्फॉर्मेशन बता पाए। अभी तो आपसे मैंने वो इन्फॉर्मेशन गैदर किया कि जाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है और क्या है वहां पे रिक्वायरमेंट। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर करिकुलम कैसा है, अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, एंड आई एम वेरी श्योर जब आप 6 मंथ्स वहां पे होंगे कैंपस के अंदर तो आपको बहुत सा इन्फॉर्मेशन मिलेगा सचिन। और फिर तीसरी वीडियो में आपके यहाँ बनाऊंगा जब आप वहां से ग्रेजुएट हो जाएंगे और वहां पे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर चुके होंगे, तो फिर वो तीसरा रेलिवेंट वीडियो बनेगा सचिन कि अब मैंने जो ग्रेजुएशन किया तो उसका मेरे को क्या बेनिफिट हुआ है, कहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे में सीक्वल में आपके यहाँ 3 बार इंटरेक्शन करना चाहूंगा। एक अभी मैंने किया है जिसका ऑब्जेक्टिव था कि स्टूडेंट्स को पता लगे कि साहब मैं कैसे एडमिशन ले सकता हूँ। फिर दूसरा होगा यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन कि कैसे कैसे वहां पे क्या है। और तीसरा मैं आपसे सचिन करूंगा जब आप ग्रेजुएशन की हुई आपको 6 मंथ्स 1 ईयर हो जाएगा, again I'll interact with you to tell that okay, now I'm in this particular position. That completes the cycle for any prospective student जिसको ये पता लगेगा कि साहब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ से मेहनत करूंगा, ऐसे पढ़ाई करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी मिलेगी और यूनिवर्सिटी के अंदर ये होगा और मेरे को ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सो आई डू दैट विद यू। यस सो थैंक्स सर। अ लॉट सचिन, आपने टाइम दिया, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम नाउ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।